हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़े विषय। और तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 इंग्लिश चैप्टर नंबर 5 जो कि है द बियर स्टोरी। तो आज की इस वीडियो से हम लोग क्लास 7 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 5 जो कि है द बियर स्टोरी उसे स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। There was once a lady who lived in the old manor house on the border of a big forest. This lady has a pet bear she was very fond of. It had been found in the forest, half dead of hunger, so small and helpless that it had to be brought up on the bottle by the lady and the old cook. This was several years ago, and now it had grown up to a big bear, so big and strong that he could have slain a cow and carried it away between his two paws if he had wanted to, but he did not want to. He was a most amiable bear who did not dream of harming anybody, man or beast. He used to sit outside his kennel and look with his small intelligent eyes most amicably at the cattle grazing in the field nearby. The three shaggy mountain ponies in the stable knew him well and did not mind in the least when he shuffled into the stable with his mistress. The children used to ride on his back and had more than once been found asleep in his kennel. Between his two paws, the three dogs loved to play all sorts of games with him, pull his ears, and his stump was a tail, and tease him in every way, but he did not mind it and in the least. He had never tasted meat. He ate the same food as the dogs and often out of the same plate: bread, porridge, potato, cabbage, turnip. He had a fine appetite, and his friend the cook saw to it that the goat his fill. Bears are vegetarians if they have a chance, and fruit is what they like best. In the autumn, he used to sit and look with wistful eyes and at the ripening apples in the orchard. And in his young days, he had been sometimes unable to resist the temptation to climb the tree and help himself to a handful of them. Bears look clumsy and slow in their movement, but try a bear with an apple tree and you will soon find out that he can easily beat any schoolboy at that game. Now he had learned that it was against the law, but he kept his small eyes wide open for any apple that fell to the ground. There had also been some difficulties about the beehives. He had been punished for this by being put on the chain for 2 days with a bleeding nose, and he had never done it again. Otherwise, he was never put on the chain except for the night, and quite rightly so, for a bear, like a dog, is apt to get somewhat ill-tempered if kept on the chain, and no wonder. तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि या एक बार की बात है, एक ओल्ड लेडी, एक बूढ़ी औरत थी। ओल्ड लेडी तो नहीं, मतलब कि एक लेडी थी, ठीक है, बूढ़ी नहीं थी, वो एक लेडी थी, एक औरत थी। वो जंगल से जा रही थी, जंगल के बॉर्डर से जा रही थी।
वहाँ पे जंगल के बॉर्डर में उसको क्या दिखाई देता है कि एक छोटा सा भालू भालू का जो बच्चा बियर का बेबी होता है, वो बियर उसको वहाँ पर मिलता है। भालू, छोटा सा भालू बिल्कुल मिलता हुआ है। और वो तो आधा मर चुका हुआ होता है, क्योंकि भूख से ही, मतलब कि उसको भूख बहुत तेज लगी थी। ऐसा लग रहा था कि वो तो आधा मर गया है भूख की वजह से। ठीक है। और फिर क्या कहती है, वो जो लेडी है और उस लेडी का जो कुक है, वो उस बियर को अपने घर ले आते हैं। ठीक, घर में लाने के बाद क्या करते हैं कि एक जो बॉटल होती है, जो बच्चों को दूध पिलाई जाती है जिस बॉटल से, उस बॉटल से उस बियर को एक बोतल पूरा दूध पिलाया। तब वो बियर जो है वो थोड़ा ठीक हुआ। फिर बहुत साल बीत गए और वो जो बियर था, वो जो भालू था छोटा सा बच्चा, वो अब एक बड़े बियर का साइज में आ गया था। जैसे कि रियल में जितने बड़े बियर्स होते हैं, उस साइज का वो बियर हो चुका था। ठीक है। तो जो बियर था वो किनके साथ रहता था, वो बियर बिल्कुल भी किसी को हार्म नहीं पहुंचाता था। काफ़ी बढ़िया, मतलब कि काफ़ी अच्छा अच्छा बियर था। काफ़ी मतलब कि काफ़ी क्या मतलब कि ऐसा बियर जो किसी को हार्म ना पहुंचाए। ठीक है, बिल्कुल किसी को भी बिल्कुल हार्म नहीं करता था। वो डॉग्स के साथ खेलता था, बच्चों के साथ खेलता था, एप्पल के पेड़ में वो चढ़ा करता था। ठीक है। तो क्या हुआ कि जो डॉग्स होते थे वो उसके साथ रहते थे, तो कभी डॉग्स उसके पैर में नोचते थे, सर में नोचते थे, बाल नोचते थे, तो वो बियर को टीज करते थे। लेकिन जो बियर था वो कुछ नहीं कहता था। और जो छोटे छोटे बच्चे होते थे वो उसके पीठ में बैठ करके ऐसे सवारी लिया करते थे, और वो उनको क्या सवारी दिया करता था, तो उसको भी मज़ा आता था इन सब चीज़ों में। ठीक है। वैसे जो बिहार होते हैं वो मतलब कि अपने थोड़े मूवमेंट में स्लो होते हैं। उनको देखोगे तो धीरे धीरे काम करेंगे। लेकिन अगर वो अपने में आ जाए, अब जैसे उनको पता चल जाए कि हमसे रेस लगा रहा है, तो अगर वो उसमें किसी पेड़ में चढ़ना चढ़ना हो, तो वो एक स्कूल बॉय, यानी अब स्कूल बॉय के जो जो बच्चा स्कूल जाता है, जैसे 9-10 के लड़के वो देख लीजिए, तो उसके अंदर बहुत सारी एनर्जी होती है। ठीक है, उसके अंदर एनर्जी का पूरा भंडार रहता है, और उसको कोई भी बीट नहीं कर सकता। लड़ाई झगड़े में तो नहीं, मतलब कि जैसे कोई मेहनत का काम करना हो, जैसे कि बोल दिया जाए 10 किलोमीटर तक दौड़ते रहो, तो अगर कोई 40 साल का आदमी और अगर कोई 10th क्लास का भी लड़का है, तो 10th क्लास का लड़का उस 40 साल के आदमी को हरा देगा, क्योंकि जो एनर्जी लेवल होता है 10th क्लास के लड़के का वो बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है। तो जो नए नए लड़के होते हैं इनमें एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा होता है, तो इन नए नए लड़कों को ये बियर जो है ये पेड़ चढ़ने में हरा सकता है। इसके अंदर इतनी ताकत होती है, इतनी एनर्जी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग आगे के चैप्टर्स, मतलब कि आगे का जो पार्ट है। ही हैज़ ऑल्सो पुट on the chain on Sundays when his mistress went to spend the afternoon with her married sister who lived in a solitary house on the other side of the mountain lake। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे चेन के बारे में बात करी गई, तो हाँ, चेन का इंसिडेंट ये होता है कि एक बार क्या हुआ था कि जो बियर है उसको मना कर रखा गया है, उसको मना कर रखा है कि एप्पल ट्री में मत चढ़ो। क्यों नहीं चढ़ो? क्योंकि इधर एक बात है एप्पल ट्री में कि एप्पल ट्री में बी हाइव्स जो होती हैं, बीज जो होती हैं जैसे मधुमक्खी, उनका क्या है, उनका वहाँ पर बीज का वो है, नेट है। ठीक है, नेट लगा है वहाँ पे, यानी उसमें मधुमक्खी का छत्ता है। ठीक, तो अगर वो बियर उसमें चढ़ेगा, उनको अगर उस बियर्स को तो शायद अच्छा लगता है मे बी, तो अगर वो शहद खाने जाएगा तो जो बीज होंगे तो उसको काट लेंगी, है ना, तो इसलिए उसको मना कर रखा है। एक बार वो चढ़ गया था, तब से जब उसकी जो मिस्ट्रेस है उन्होंने उसको 2 दिन तक चेन में बांध कर रखा था। डॉग्स की तरह बियर्स को भी चेन में बंद रहना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। क्यों नहीं अच्छा लगता है? देखो, जो बियर होते हैं वो कहाँ एकदम वहाँ रहते हैं, बियर जो होते हैं एकदम जंगल में रहता है, दिन भर घूमते रहते हैं, आज़ाद होते हैं। यहाँ पे उनको 2 दिन तक चेन में बांधे तो उनको अच्छा थोड़ी ना लगेगा, इसलिए। ठीक है, तो उसको क्या चेन से बहुत नफरत होती, तो 2 दिन तक वो चेन में बंधा रहता था, तो उसको चेन नहीं बंधा पसंद। ही वॉज ऑल्सो पुट ऑन द चेन ऑन संडेज व्हेन हिज मिस्ट्रेस went to spend the afternoon with her married sister who lived in a solitary house on the other side of the mountain lake. A good hour's walk through the dense forest. It was not supposed to be good for him to wander about in the forest with all its temptations. It was better to be on a safe side. He was also a bad sailor and had once taken such a
fright at a sudden gust of wind that he had upset the boat, and he and his mistress had to swim to the shore. Now he knew quite well what it meant when his mistress put him on the chain on Sundays with a friendly tap on his head and the promise of an apple on her return. If he had been good during her absence, he was sorry but resigned. Like a good dog, when his mistress tells him he cannot come with her for a walk, one Sunday when the lady had chained him up as usual and was about half away through the forest, she suddenly thought she heard the cracking of a tree branch on the winding footpath behind her. She looked back and was horrified to see the bear coming along full speed. Bears look as if they move along quite slowly, but they shuffle along much faster than a trotting horse. In a minute, he had joined her, panting and sniffing, to take up his usual place dog fashion at her heels. The lady was very angry. She was already late for lunch. There was no time to take him back home. She did not want him to come with her, and besides, it was very naughty of him to have disobeyed her. She told him in her severest voice to go back at once, menacing him with her parasol. He stopped a moment and looked at her with his cunning eyes, but did not want to go back and kept on sniffing at her. When the lady saw that he had even lost his new collar, she got still more angry and hit him on the nose with her parasol so hard that it broke in two. He stopped again, shook his head, and opened his big mouth several times as if he wanted to say something. Then he turned round and began to shuffle back the way he had come, stopping now and then to look at the lady, till at last she lost sight of him. When the lady came home in the evening, the bear was sitting in his usual place outside his kennel looking very sorry for himself. The lady was still very angry. She went up to him and began to scold him most severely and said he would have to be chained for 2 more days. The old cook, who loved the bear as if he had been her son, rushed out from the kitchen very angry. What are you scolding him for, misuse? My Miss Mrs. Mrs. What are you scolding him for, Mrs.? Said the cook. He has been as good as gold the whole day. Bless him. He has been sitting here quite still on his haunches, as meek as an angel, looking the whole time towards the gate for you to come back towards for you to come back. तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? हाँ, तो यहाँ पे क्या, जैसे कि उसको जब वो एक बार पेड़ में चढ़ गया था तो उसको क्या 2 दिन तक के लिए क्या चेन में बांध के रखा गया था, है ना? ठीक, तो इसलिए उसको क्या चेन में बांध के रख दिया जाता था, लेकिन उसको चेन को बिल्कुल पसंद नहीं था। चलो, इसलिए तो उसको चेन में बांध दिया जाता था। और फिर क्या, उसको संडे, जितने भी संडे आते थे, हर संडे क्या उसको चेन में बांध दिया जाता था। क्यों बांध दिया जाता था? क्योंकि जो हमारी इसमें जो लेडी है जिन्होंने इसकी जान बचा करके उसको यहाँ लाई थी, वो लेडी अपनी मैरिड, यानी कि उनकी एक बहन है, उनकी शादी हो चुकी है,
ठीक है। तो हर संडे को वो दोपहर ऑफ आफ्टरनून को वो वहाँ पर चली जाती हैं, कुछ समय व्यतीत करने, इस टाइम को स्पेंड करने चली जाती हैं। ठीक है। तो वो उनके घर चली जाती हैं। तो वहाँ घर चली जाती, तो अभी तो ये जो बियर है इसको बांध के जाती हैं, लेकिन पहले क्या करती थी, ये बियर को भी उनके घर ले जाती थी। तो एक बार क्या है कि जो उनकी मतलब कि जो उनकी बहन है वो कहाँ रहती है, तो ये देखो उनकी बहन का घर, फिर घर के आगे नदी, फिर नदी के आगे जंगल, फिर जंगल के आगे ये बियर का घर। मतलब कि देखो जहाँ पे बियर रहता है, इस बियर के घर के आगे क्या है, वो जंगल है। ठीक है, जहाँ पे वो बियर मिला था। फिर वो जंगल के आगे एक नदी है, और नदी के आगे उनकी बहन का घर है। ठीक है। तो अब जो लेडी है उनको अपनी बहन के घर जाना होता है, तो कहाँ से जाती हैं, तो वो पहले अपने घर से निकल के जंगल में जाती हैं। जंगल से फिर रिवर में बोट से लेकर, बोट में बैठ करके इस नदी के इस किनारे, मतलब कि एक किनारे से लेकर के दूसरे किनारे में बोट से जाती हैं, दूसरे किनारे। फिर उनकी बहन का घर आता है, तब वो वहाँ पे जाती हैं। तो एक बार इसी बियर को लेकर जा रही थी, तो बियर को घर से लिया, घर से फिर जंगल से लेकर के नदी तक पहुंची, और नदी में बैठ के जैसे बोट में उसको बैठा, अपना बैठा है, अपना बैठी, बियर को बैठाया बोट में और लेकर जब चली, तो जो बियर था वो पानी को देख के बहुत एक्साइटेड हो जाता है, इतना उछलने लगता है कि जो बोट होती है वो पलट जाती है, और उन दोनों वहीं पे पानी में गिर जाते हैं। फिर उन दोनों को पानी से तैर करके क्या अपनी बहन के घर जाना पड़ता है। तो इसलिए जो अब हमारी जो ये लेडी हैं, ये अब बियर को नहीं ले जाती हैं वहाँ अपनी बहन के घर आफ्टरनून में। वो बियर संडे संडे जाती है, तो संडे को बियर को वहाँ पे बांध देती हैं। ठीक है। फिर एक बार फिर संडे आया, तो संडे को क्या बोला कि जो लेडी थी उसने अपने बियर को बोला कि देखो बियर, बियर बेबी, मैं अपने मतलब कि उसको सब पता रहता है, कह रहा है मैं घर जा, मतलब कि मैं जा रही हूँ अपनी बहन के घर, मैं तुमको बांध रही हूँ। ठीक है। और बांध करके चली जाती है। ठीक। तो जब जैसा कि जो लेडी होती है वो अपने घर से निकली, निकलने के बाद वो कहाँ जाएगी, मतलब पहले तो उसको जंगल से होकर के नदी के पास जाना पड़ेगा। तो जो लेडी है वो जंगल में पहुंची, तो जंगल में जब चल रही थी तो उसको पीछे से ऐसे एक आवाज आती है जैसे लीफ क्रैकलिंग करते हैं। अब लीफ क्रैकलिंग का मतलब कि जैसे पत्ती होती, कोई लीफ होती, पत्ती जब वो एकदम सूख जाती है, जमीन में पड़े पड़े एकदम सूख जाती है, तो उसमें पैर रखते तो ऐसे आवाज आती है ना, तो उसी को लीफ क्रैकिंग कहते हैं। ठीक है। तो जो लेडी आगे आगे जा रही थी, और उसके पीछे से क्या मतलब कि ऐसी कोई साउंड आई कि ऐसे लीफ जो है वो क्रैक हो रही है। तो जो लेडी है उसको लगा कौन है पीछे, तो लेडी जब पीछे को मुड़ करके देखती है, तो उसको वहाँ पे क्या एक बियर दिखाई देता है। उसको देखा भालू, अरे ये बियर यहाँ पे क्यों आ गया। ठीक है। और फिर जब जैसे पीछे को देखा, तो जो बियर था वो इतनी तेज दौड़ दौड़ कर लेडी की तरफ आ रहा था, और एकदम तेजी से दौड़ करके लेडी के पास आ गया। ठीक। ये सुन करके लेडी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया। क्यों? क्योंकि उसने बात नहीं मानी, पहले कभी नहीं करता था, आज क्यों कर दिया, चेन भी तोड़ दी। ठीक। तो इससे इसको जो लेडी थी बहुत एंग्री हो गई, बहुत गुस्से हो गई, बहुत गुस्से में थी। ठीक है। उसके हाथ में उसका नया पैरासॉल था। पैरासॉल मतलब कि अम्ब्रेला, छाता नया खरीदा था, उसके बाद उसके हाथ में एकदम नया पैरासॉल था। ठीक। और बियर को देखा, फिर बियर के गले में देखा कि उसका जो कॉलर है वो मिसिंग है। कॉलर मतलब कि देखिए जो हम डॉग्स लेते हैं फिर उसको बांध देते हैं, कुत्ते का पट्टा जिसे कहते हैं, वो होता है कॉलर। ठीक है। तो ये बियर्स कॉलर इसको कहा जाता है, कि जो बियर का पट्टा होता है। ठीक। तो वो जो उसका पट्टा था कॉलर, वो उस बियर की गर्दन से गायब था। तो जो लेडी थी है ना, उसने उसको ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि इसका नया नया कॉलर इसने गुम कर दिया। तो जो उसका हमने पैरासॉल, यानी जो इसका हमने जो छाता था, ये छाते को लिया और बियर की नाक में इतनी तेज़ मारा, इतनी तेज़ मारा कि जो बियर की नाक में जैसे छाता पड़ा, तो जो छाता था वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है। और जैसा पता है छाते में एक लोहे की रॉड होती है, एक स्टील की रॉड होती है, और वो उसको इतनी तेज़ मारा उसकी नाक में कि जो उसका छाता था वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, दो पार्ट में टूट गया। ठीक। और उसके बाद जो हमारी लेडी थी उसने इतनी तेज उसके ऊपर चिल्लाया, और वो उसको क्या बोला, तुम यहाँ क्यों आ गए, ऐसा तुमको मना किया था। फिर उसके बाद बोल करके बहुत ज़्यादा गुस्से में फिर ये जो लेडी थी वो आगे को बढ़ गई, फिर नदी में गई, फिर नदी में नाव में बैठ करके अपनी बहन के घर चली गई। ठीक। फिर जब शाम को
वापस अपने घर पहुंची, और घर में पहुंची तो बियर को देखा, तो बियर का जो कैनल था, यानी कि जो बियर का घर था, वहीं पर बियर बैठा हुआ था और उसको क्या चेन से बांधा रखा हुआ था, और वहां पर उसका कॉलर भी था। ठीक है, तो जो बियर था तो आराम से बैठा हुआ था, उसके सब चेन इन सब बंधा था। ठीक, और जब लेडी आई वहां पर, तो लेडी को तो गुस्सा आ गया, तो लेडी उसके पास गई जा करके बियर के पास, और उसको चिल्लाने लगी, उसको डांटने लगी, तुम क्यों आ गए पीछे, मैंने तुमको मना करा था और यहाँ पे आके भोले बनकर बैठ गए, ऐसे खूब डांट रही थी। ठीक, डांटने के बाद क्या हुआ कि जो उसकी कुक थी वो काम कर रही थी अंदर, और जो कुक थी वो बियर से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, अपने बच्चे की तरह प्यार करती थी। तो कुक बहुत गुस्से, कुक ने देखा बियर को लोग, बियर को लेडी डांट रही है, तो कुक बहुत गुस्से में बाहर निकल कर आई, और लेडी बोला, क्यों तुम क्यों आप इसको क्यों डांट रही हो, ये तो कुछ, इसने तो कुछ भी नहीं करा। ठीक है, और वो तो फिर लेडी कहने लगी, अरे नहीं, ये तो जंगल में भाग कर आ गया था। तो ये जो लेडी थी कह रही थी, आप पागल हो गए हो क्या, ये यहीं पर बैठा हुआ था, ये कहीं पर, ये 1 इंच भी नहीं हिला हो, और ये पूरा टाइटली यहीं पर बंधा हुआ था, और ये आपकी राह देख रहा था कि आप कब वापस आओगे। और यहाँ पर स्टोरी हो जाती है ख़त्म। तो अब इसका मतलब समझ पा रहे हो आप, कि यानी कि जो बेयर जंगल में मिला था, वो ये हमारा बियर नहीं था, ये वाला बियर जो जंगल में बियर मिला था, और ये बियर अलग अलग है। यानी कि ये तो हमारा पेट बियर है, पेट। और वो जो बियर मिला था जिसको लेडी ने छाते से मारा था, वो तो जंगली बियर था। ठीक है, समझ में आया, वो जंगल का बियर था। अगर वो, यानी कि वो इस लेडी के पास आया था ताकि इस लेडी को खा सके, और लेडी ने उसको भगा दिया। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारी स्टोरी थी तो कंप्लीट हो चुकी है। स्टोरी के साथ जो हमारा चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है वो करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।